Hey everyone, hope you guys are doing absolutely well. And this is first video on MBA Raw and Real Talk with IM students MBA के ऊपर. So इस वीडियो के अंदर we have a guest from IM Kasipur. IM Kasipur से उन्होंने 2019-2021 batch this year he pass out and he will be joining us to share his overall experience कि क्या क्या उन्होंने सीखा समझा एंड क्या एवरेज पैकेज होता है, क्या हाईएस्ट पैकेज होता है एंड बेस्ट लर्निंग ऑफ MBA का बेस्ट लर्निंग उनको क्या मिला एज ए studying in IM Kasipur. So let me make him join in this session and you will enjoy whole conversation and you can make a conclusion as per your need कि आपको क्या सही लगता है. You can decide and please leave the comment in comment section if you have any doubts. So welcome Som Samantre in this raw and real talk with IM students and you are one of that जो 2019 बैच के अंदर गए थे. 2019 बैच से पास आउट हुए, करेक्ट. एंड सोम, ये जो अभी हम बात करने वाले हैं बेसिकली आईएम्स के अंदर क्या एटमॉस्फेयर है, आईएम के अंदर कौन से आईएम के अंदर हमें जाना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपकी जो आईएम की जर्नी थी अब तक की उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या रहा. एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जॉब का स्ट्रक्चर कैसा है, बट हाँ लर्निंग का कैसा ग्रोथ है वो हमें जानना है, ताकि जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं या जो भी लोग इस कन्वर्सेशन को अटेंड करें दे विल लर्न अ लॉट. So Som, please tell me something about yourself, ki what you have done and where you are from. Okay, I am from a humble background. So I completed my schooling from DPS and then I did my bachelor's in engineering from NIT Raipur in chemical engineering. Okay. So the scope of job in that sector was not particularly good at that time. Okay. And basically, I wanted to have that kind of knowledge about that if I'm going to work in a company. So it's better that if I have some kind of a basic knowledge about how the company works, about the administration stuff and means the inner workings, the core workings of the company. So I found it reasonable that I should pursue MBA. Okay. So I made up my mind. So from the third year itself, I started, preparing for the CAT and other management exams like IFT and ZAT. So after fourth year, I actually was able to clear the written portions of all the three exams that I gave, IFT, ZAT, and CAT. So I had actually a couple of interviews with the new IMs, then MDI Gurgaon, SP Jain, then XLI Jamshedpur also, and IFT Delhi. So of course, my percentile was not that great. So therefore, I converted IM Kashipur, and that's what I am here right now. So what's your percentile in 2019? कि कितना percentile score हुआ था? My percentile was around 96.2 overall percentile. Overall percentile 96.2. If you take a Okay, yeah, nice. so in verbal I scored around 95 percentile. In DILR it was around 94, and in quant also around 93, 94. Almost all balanced scores. ओके नाइस. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब भी हमारा कोई भी इंसान गोल बनाता है कि लाइक आई वांट टू क्रैक IMBA या मुझे कैट देना है, उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग जॉब ड्रॉप लेते हैं फिर प्रिपरेशन करते हैं. तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन क्या है कैट के लिए, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई है, ये एक यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, राइट. इसमें बेसिक फंडामेंटल तीन चीजें आपको पढ़ाई करना होता है. तो व्हाट्स द स्ट्रैटेजी ऑफ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स, क्या होता है, मतलब बेसिक किसी को भी अगर गाइड करना हो, व्हाट आर द 3 टिप्स? 3 टिप्स मेरे हिसाब से, अगर आपके पास अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो इट्स अ प्लस, क्योंकि मैनेजमेंट में जो भी आपको पढ़ाया जाता है those are something that are actually, if you have an experience with them, then it's a kind of a win-win situation for you, because those are the same things that you're actually going to have a walkthrough or going to learn the same in the MBA, it's management or business administration. And preferably if you see, then management institutes do have an additional weightage towards those who have work experience. So if you're a fresher, then in order to get a very good college, you need to have a good percentile. Like for example, in order to get old IMs, you need to have 99 percentile above. But for a job experience candidate, it can come down to even 95 percentile. It depends. Okay. So if you want to really go for MBA, then it's preferable that you have an experience of at least 1 or 2 years. Then it puts you in a very good stage, and it actually helps you that yes, you have seen it in your experience, means you have felt it.
yourself some things, so it will be actually easier for you to understand what is being taught you in the MBA course. That's Okay. what I feel. Means you if you have some sort of experience, मतलब किसी को अगर 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो एक प्लस पॉइंट की तरह काम करेगा उसके लिए, उसकी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी, और उसको एमबीए का प्रोग्राम अच्छे से समझ में आने के लिए, राइट? ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि इफ यू हैव एक्सपीरियंस यू कैन गो फॉर एमबीए, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इफ यू आर अ फ्रेशर आल्सो यू कैन गो, बट थोड़ा परसेंटाइल पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड सबसे Exactly. सबसे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मैं जो जानना चाहता हूँ कि आईएम कासेपुर, जो कि ज्यादा पुराना आईएम नहीं है, ये एक बेबी आईएम की कैटेगरी में ही आता है, करेक्ट? न्यू आईएम भी नहीं है क्योंकि इसे काफी टाइम भी हो चुका है। न्यू IIM से हो गया, इट इज अ न्यू IIM एक्चुअली, बेबी IIM से डिफरेंट। ओके ओके ओके, तो ये बेबी आईएम और न्यू आईएम में क्या डिफरेंस है? न्यू IIM पैकेज दोनों में, एजुकेशन का क्या डिफरेंस है? बिकॉज आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे वहां पे जो पढ़ाई किए, और यू स्टडी इन आईएम कासेपुर, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा जानना। अगर अगर ऐसा डिस्टिंक्शन किया जाए ओल्ड आईएम्स, न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स के बीच में, तो डिफरेंस हो जाता है काइंड ऑफ एलुमनी नेटवर्क, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी बी स्कूल में। जो ओल्ड आईएम्स की जो एलुमनी नेटवर्क है, जितना साल का एक्सपीरियंस, वो बहुत स्ट्रांग है, वेरी वेरी स्ट्रांग। आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कलकत्ता, दे हैव बीन फंक्शनिंग फॉर द पास्ट 50 years. Yeah. So they have a very good, strong alumni network that really helps the students who go there to get very good offers and job placements. In comparison to baby IIMs and new IIMs, the alumni network is not that strong as of now. It will take time. अभी जैसे IIM काशीपुर का 10 साल हो गया है, तो एक alumni strong एक बन रही है, बट बेसिकली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया जैसे उनका है। रेपुटेशन भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है विद टाइम। तो वैसा अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं जो पैकेजेस रहता है, पैकेजेस पैकेजेस में अगर देखा जाए तो उस हिसाब से पैकेजेस में भी बहुत डिफरेंस रहती है। अच्छा, बहुत डिफरेंस रहती है ओल्ड आईएम्स और बेबी आईएम्स और न्यू आईएम्स के बीच में। पैकेजेस में भी बहुत डिफरेंस है। जो लोग इसे समझ नहीं पा रहे उनके लिए मैं एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि जो पुराने आईएम्स है वो ऑलरेडी 50-60 साल पुराने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ का पहला, दूसरा या तीसरा बैच है वो आज की डेट में किसी ना किसी कंपनी के अंदर चेयरमैन या डायरेक्टर के पोजीशन पे बैठ चुका है, करेक्ट? क्योंकि अगर कोई इंसान वहाँ पे है तो और वो अगर कंपनी, मान के चलते एग्जाम्पल के तौर पे वो आदित्य बिरला की कंपनी है, तो आदित्य बिरला देख रहे हैं कि हमारी कंपनी का जो चेयरमैन या डायरेक्टर या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है वो आईएम अहमदाबाद से, बैंगलोर से, कोलकाता से, लखनऊ से, इंदौर से, तो उनको ये चीज क्लियर होती है कि जब हमारे कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन या सीनियर लीडर जो है एक इतनी अच्छी कॉलेज से आया है, तो अनडाउटेबली वी विल हायर द पीपल फ्रॉम द सेम कॉलेज, दैट्स इट, राइट? एग्जैक्टली, या दैट्स द माइंडसेट ऑफ दैट। Yes. That's the mindset of companies. तो अभी जैसे कि जो नए आईएम से जो 10 साल हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के जो पहला बैच था वो अभी शायद 10 साल बाद कोई और हाई लेवल या टॉप पोजीशन पे बैठा होगा, और इफ दे वांट टू हायर पीपल तो वो अपने ही कॉलेज से हायर करेंगे। सो बस यही चीज होती है, और इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतना ही सिंपल वे ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग कि आईएम, टॉप आईएम्स में क्या होता है, मीडियम और न्यू आईएम्स के अंदर क्या डिफरेंस है, राइट? सो हाँ, मतलब बेसिकली एक वो ब्रांड बन चुकी है। अब मतलब अगर आप अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता की बात करें तो एक ब्रांड हो चुका है। तो बेसिकली अगर वो वहां से वो पास आउट होता ही है तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ माइंडसेट दैट यस, ये लड़का कुछ है, इसमें कुछ स्पेशल है। तो इन अ वे ही और शी इज बाउंड टू गेट अ गुड कंपनी रादर इन कंपैरिजन टू ओल्ड आईएम्स और न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि अभी जो 2 साल का पूरा पढ़ाई था, या जो 2 साल में क्या क्या हुआ एमबीए करते हुए, वो थोड़ा सा जानना है। और उसमें जो सबसे बेस्ट लर्निंग था एज अ पर्सन यू, कि तुमने पहले इंजीनियरिंग किया, फिर हम इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट के अंदर आ गए, तो वो जो स्टैग्नेंट चेंज मिलता है एज ए इंजीनियर और एज एमबीए ग्रेड, उसमें क्या डिफरेंस था वो थोड़ा जानना। अगर ऐसा देखा जाए तो कैट में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जिनके आते हैं वो इंजीनियर से होते हैं, इसलिए इंजीनियर्स वालों को बहुत ही कम वेटेज मिलती है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर परस्यूइंग कॉमर्स, आर्ट्स एंड अदर बैकग्राउंड्स। तो एक वो उन लोग के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ, तो ठीक है, अगर आप एमबीए करने जाते हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है, तो एक काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि हाँ भाई, इंजीनियर्स लोग बहुत सारे लोग। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैंने देखा एमबीए में वो था कि अगर आप एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, रिसोर्सेज इन द फॉर्म बहुत ही अच्छे फैकल्टी या प्रोफेसर्स होंगे, और फिर बाद में उसके अलावा बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे बाहर के मतलब फ्रॉम इंडस्ट्री स्टालवर्ट्स या फ्रॉम सम काइंड ऑफ सीईओ और फ्रॉम सम काइंड ऑफ
इंडस्ट्री प्रोफेशनल, जो कि उनका इंटरेक्शन जिस तरह रहता है स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत ही मतलब सही रहता है. आई मीन इफ यू गो टू वेरी गुड कॉलेजेस देन यू गेट दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट यू वांट. You can learn various things from them, and the kind of quality of students that you have as friends there, that also matters a lot. In MBA, I would say that apart means if 100% is the kind of the complete learning you get from MBA, then 15 to 20% is classroom learning, and the remaining 80 to 85% is peer learning. All the learning comes from friends and the networking that you build during your 2 years in MBA. That is one of the most important things I would say. और उसके अलावा अगर ऐसा देखा जाए तो using an MBA as a profile or a background, you can actually connect with various people. Any people, मतलब business related, organization related, जो भी कुछ profiles हो, आप उनसे connect कर सकते हैं freely using any kind of social media platform like LinkedIn, Facebook, Instagram, wherever. Because it builds a base that yes, you have some understanding of how the businesses work. So you have that ability to interact with others in order to understand more in detail. Because you have given the base, MBA builds up a base for your knowledge, and to build up the final building or the structure above the foundation of the base, you need to interact more. And that kind of interaction only comes when you have a good understanding of how the businesses work. And that is what MBA actually provides you. Simple as that. So it really helps you a lot to, interact more and gain better insights. ओके सबसे बढ़िया चीज तो इसमें यही है कि हम क्लासरूम टीचिंग से भी ज्यादा अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं. मतलब वो एक क्वालिटी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. दैट्स द मेन पॉइंट. एंड कमिंग टू द लाइक सबसे इम्पोर्टेंट और क्यूरियस क्वेश्चन सभी लोगों का है लाइक लोग एमबीए में इतनी फीस इसलिए डालने को तैयार होते हैं क्योंकि दे विल गेट द पैकेज कि वहां से उतना पैसा आएगा और उतना हम पैसा कमाएंगे. मतलब अगर अब प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं. लाइक इफ आई विल टॉक अबाउट टॉप 10 प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस, तो वो दे आर आल्सो चार्जिंग 15 लाख से 20 लाख के बीच में, डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है. सो पीपल आर लाइक मोर क्यूरियस कि मेरा 2 साल के बाद कैसा प्लेसमेंट होगा, क्या पैकेज लगेगा. तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि आई एम कासेपुर पे नॉट अबाउट यूर ओनली प्लेसमेंट, कि थ्रू आउट जो जर्नी थी प्लेसमेंट की, जो हमारे दोस्त, जो आपके दोस्त हैं जिनकी प्लेसमेंट हुई है, जो हाईएस्ट पैकेज कितना का लगा और लोएस्ट पैकेज किसका रहा, या किसको प्लेसमेंट जो सेटिस्फाइंग मतलब होता है कि मेरे को जिस कंपनी में जिस प्रोफाइल में जॉब करना है वो मुझे मिल गया. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है कि मेरे को जिस टाइप का काम करना है जिस फील्ड में, वो मुझे मिलना चाहिए. पैकेज 1-2 लाख का कम ऊपर नीचे भी चलेगा, बट आई विल शुड लाइक काम मुझे पसंद आना चाहिए. तो वो मुझे जाना है कि एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि प्लेसमेंट वाला जो पार्ट होता है. सो प्लीज कैन यू एलोबरेट लाइक दैट. Yeah, in a way, this time due to COVID, there has been a hit in the job and the placement sector. It's not just IIM Kashipur everywhere. So some companies which had been coming before have not been able to come this time to recruit from our campus. That's the truth, actually. Nonetheless, but the package, in a way, if I can say that the higher packages have gone around 20 to 23 lakhs easily. I mean, but those packages, in a way, they are actually provided to those who have actually a kind of an experience working in that particular sector of field. Work experience candidates do have an advantage of getting a higher package in comparison to the freshers. That's that's a common thing that I have actually watched. And talking about the roles इस बार ज्यादा देखा गया डेटा एनालिटिक्स में. डेटा एनालिटिक्स के बहुत ज्यादा रोल्स आते हैं. And marketing and data analytics are the one which actually kind of are the coming majority in campus placements. Finance के भी हैं but उतना नहीं. अगर भी finance आते हैं तो they are normally clubbed with data analytics. Data analytics is kind of the new oil right now. Everyone is coming and means encroaching upon data analytics. तो उसका एक और data analytics के packages जो भी रहते हैं वो भी बहुत सही रहते हैं. I mean it's good, decent packages. At least for a fresher work experience, अगर उसका starting point है, data analytics is offering a very good lump sum amount, comfortable and satisfactory also. बात ये है कि सभी लोगों को वो क्या बोलते हैं, वैसे वो ड्रीम कंपनी हर एक लोगों की रहती है. मतलब मुझे ये कंपनी में काम करना है, मुझे ये वाला पैकेज चाहिए, जो कि सभी लोगों को मिल नहीं पाते. ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल. तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि अगर भी आपको ड्रीम पैकेज या ड्रीम कंपनी नहीं मिलती तो डोंट गेट डिप्रेस और डिसहार्टेड, क्योंकि लाइफ अभी भी बाकी है. एज अ फ्रेशर मुझे भी अपनी ड्रीम कंपनी और ड्रीम ऑफर नहीं मिली. आई एम आल्सो वर्किंग इन अ स्टार्टअप राइट नाउ. सो आई हैव नॉट गॉट माय ड्रीम कंपनी और ड्रीम ऑफर. So I'm not focusing that right now because I have my plan worked out. I'm looking for the long term. So right now, as I'm a fresher, so I'm looking to build my skills. Startup में काम करके मैं अपने skills बढ़ाऊंगा. Skills बढ़ा के experience लाऊंगा.
experience है फिर then I will try to switch over to a good company. That is how the things work. But people sometimes you the point that you mentioned that लोग 18-20 लाख खर्चा कर लेते हैं और उनको चाहिए कि एक ROI अच्छे रहने चाहिए कि 25 लाख का जॉब मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है. हर एक लोगों को 25 लाख की जॉब मिलती भी नहीं. बिल्कुल इट्स नहीं नॉट इजी. है. तो मैं हाँ एग्जैक्टली तो वो मतलब मुमकिन नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ वहीं पर ओवर हो गया. The learnings that you have got from the MBA course that you pursued for 2 years, those are going to help you a lot in the long-term perspective. क्योंकि after a time around 3 to 4 years, in initial 3 to 4 years, you will be fine. You will be gaining experience. After that, nobody is going to look at your college, what kind of college you came out with, what kind of pointer you got in your MBA course, nothing like that. It's truly dependent upon what kind of skills you possess and what is the experience that you have. तो अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको हर समय कंपनी के मतलब मिल जाएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन जहां पर आपको मिलेगा 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, 5-6 साल का एक्सपीरियंस, बिकॉज द मैटर एक्सपीरियंस एंड द स्किल सेट दैट दे रिक्वायर. तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से कॉलेज से अगर 3-4 साल बाद अगर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं. तो अगर स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छा पैकेजेस ड्रीम कंपनी नहीं मिल रही तो कंटिन्यू विद व्हाट यू हैव गॉट. डिसेंट ऑफर है, डिसेंट पैकेज है, फाइन, कंटिन्यू विद इट, बट डोंट लूज होप बिकॉज आगे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, नथिंग मोर. सो यही चीज है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आईएम का ठप्पा लग गया या आईआईटी का ठप्पा लग गया या एनआईटी का ठप्पा लग गया तो हमारे को ये मरते दम तक काम आएगा. हाँ, काम आ सकता है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जॉब लगाने के लिए हर बार काम नहीं आता. क्योंकि जो हमारी पहली जॉब होती है, चाहे वो आईआईटी से हो, एनआईटी से हो या आईएम से हो, कहीं से भी हो, बस वो पहली जॉब पाने के लिए कॉलेज हेल्प करता है. उसके बाद की सारी जॉब्स आपको खुद से ही लगानी होती है. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कंडीशन लेते हैं कि अगर कोई इंसान है जिसने फाइनेंस का काम किया 1 साल और उसको ऐसा लगता है कि मुझे फाइनेंस को स्विच करके मार्केटिंग में जाना चाहिए, तो डेफिनेटली उसको एक मार्केटिंग का जॉब मिलने के लिए उसका आईएम का डिग्री तो थोड़ा सा ही हेल्प करेगा, 10%, लेकिन 90% उसके स्किल सेट उसको हेल्प करेगी कि उसको अगला मार्केटिंग का जॉब मिलेगा. करेक्ट? इज इट एज सिंपल एज दैट? श्योर. जैसे फॉर एग्जाम्पल योर 3-4 साल आपने जॉब कर लिया, उसके बाद फिर आपको जॉब स्विच करना है, तो आपको मेन सोर्स है कि रेफरल रहता है. एक सबसे मेन सोर्स ऑफ जॉब हंट इज रेफरल. रेफरल अगर वही तब मिलेगा जब आपके एलुमनी स्ट्रांग रहेंगे या आपके फ्रेंड्स वहां पर काम कर रहे होंगे उसी कंपनी में जहां पर आपको जाना है. तो उस केस में अगर आपके फ्रेंड्स, उस केस में मैं बोलूंगा कि ओल्ड एम्स और न्यू एम्स में डिफरेंस आते हैं, क्योंकि ओल्ड एम्स में वैसे एक एलुमनी स्ट्रांग नेटवर्क है ही पहले से, जहां पर वो बहुत अच्छे अच्छे कंपनी से काम कर रहे हैं, तो उनको वहां पर स्विच ऑफ करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. पर न्यू एम्स में चूंकि अभी एलुमनी नेटवर्क एक बन रहा है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें वो थोड़े से प्रॉब्लम आती है. तो आपको खुद से मतलब ट्राई करके अपनी ही स्किल से दिखानी पड़ेगी ताकि आप उस लेवल तक पहुंचो जहाँ की एक ओल्ड एम का बंदा. तो यू नीड टू कंपेयर योरसेल्फ टू देम, not just yourself. You just need to make them. They may have a jump start of 3 to 4 years at first, but after 3 to 4 years, once you have attained the required skill set, then it's kind of a level playground for each and everyone. That's it. It's really interesting and like to the point talk कि ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा करने से ऐसा होता है. ठीक है. And like where you are working, like कौन सी कंपनी में या कौन से स्टार्टअप में आप like start करने वाले हैं? So my startup is just a 2-year-old startup by the name Aggregator. It's based in Bhopal. So it's actually related to supply chain and logistics, transportation service for food grains. Okay. So it's a B2B marketplace, means business to business sourcing. So that is where I'm going to work. Means right now it's kind of an orientation for me for its initial months. Then after that, hopefully I will be jumping into the product management because it is trying to develop a online marketplace where both the buyers and the sellers will be able to meet, thereby eliminating the need of the middleman, which actually increases the transaction cost and also the time. So in order to simplify the process, we are just trying to build an online marketplace where both the sellers and the buyers can come and interact with each other, and then the transaction can take place. Okay, so that's the main thing we are trying to nice. And जो जैसे कि हमने पैकेज की बात करी थी, तो जो पैकेज लाइक कुछ लोगों का ही होता है जो 20 लाख 25 लाख के आसपास पैकेज लगता है आईएम कासेपुर से, बट एवरेज जो हमारी स्टूडेंट है या अगर जो हमारी पब्लिक है उनका जो पैकेज है रेंज फ्रॉम कितने से कितने तक रेंज करता है वो हमें जानना है. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द एंडिंग कितना रेंज होता है? इट्स फ्रॉम लाइक वी कैन से मिनिमम इज लाइक 11 10. Yeah, minimum around 10 or 11 तो आराम से हो ही जाता है. And
on an average, if you take the median, it's around 13 to 14. 13 to like 14 is the like we can say average package of IIM Kazipur grad कि वो अगर they are हाँ entering in the first job. हाँ, like it's nice like आपके मतलब इनिशिएट करने के लिए तो काफी बेहतर है लाइक क्योंकि आपके पास IIM का टैग भी है, आपकी एलुमनी नेटवर्क भी काफी क्वालिटी वाली है एंड ओवरऑल एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि एलुमनी नेटवर्क ही हमें चाहिए आफ्टर ऑल, क्योंकि सारी चीजें खुद से ही सीखनी है, तो ये काफी ठीक है. So like thank you for like sharing your all experiences and journey of like last 2 years. You can continue with the startup like for more than 1 year. Maybe then after you decide कि उसके बाद क्या करना है, right? more than 2 years actually. After that, 2 I will साल decide whether I Okay. need to switch on. मतलब 2 साल काम करने के बाद ही At आप least डिसाइड minimum करेंगे 2 कि years. क्या करना है. ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है एंड लाइक इट्स रियली नाइस सोम कि यू गिवन द टाइम टू अस एंड होपफुली जो लोग ये वीडियो देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली IIM Kasipur इट्स अ गुड प्लेस टू लर्न एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल देयर एंड सोम सावंतरे जो है Sure. उसके लाइक ये जो जर्नी अगर इफ यू लाइक इट कनेक्ट विथ हिम, कनेक्ट विथ सोम. इनका लिंक्डइन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है. सो होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस.